جو نوجوان ایک وقت کی نماز نہیں حضرت جمعے کی بھی نماز چھوڑ رہے ہیں اور باتیں کیا کرتے ہیں، غریب نواز پر کوئی انگشت نمائی کرے گا ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اے نادان، خدا کی قسم میرے غریب نواز آج سے 800 سال پہلے بھی بھارت کے راجا تھے، آج بھی میرے غریب نواز بھارت کے راجا ہیں، قیامت کی صبح تک غریب نواز بھارت کے راجا رہیں گے۔ اسے راجا ہندوستان کے لیڈروں نے نہیں بنایا، بھارت میں میرے غریب نواز خود نہیں آئے، پیغمبر اسلام نے بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، فیضان غریب نواز، نعرہ تکبیر۔ عطائے رسول کہا جاتا ہے، غریب نواز وہ غریب نواز ہے۔ آپ جانتے ہیں غریب نواز کو، جب میرے غریب نواز تشریف لائے تھے حضرت ضمن ایک بات نکل آئی ہے، آپ کا کردار اچھا نہیں ہے، آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں برا کہتے ہیں، سب سے برا میں ہوں، سب سے گنہگار میں ہوں، سب سے بڑا پاپی انسان میں ہوں، میں کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوں، لیکن میں آپ کے سماج کا ہوں، جہاں آپ پلتے ہیں وہاں میں بھی پل رہا ہوں، جہاں آپ سانسیں لے رہے ہیں وہیں میں بھی سانسیں لے رہا ہوں۔ مسلمانوں غور سے سننا، کردار جب انسان کا اچھا ہوتا ہے پھر وہ کبھی مرتا نہیں مٹتا نہیں ہے۔ میرے غریب نواز جب ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے تھے تو آپ نے جانا ہوگا پھر طویراج چوہان نے کیا کیا کیا، آنا ساگر کا پانی بند کر دیا گیا، مجھے وہ سنانا نہیں ہے۔ پھر طویراج چوہان نے کہا تھا اے کوئی پنڈت ایسا جو غریب نواز سے جو ہے اس فقیر سے مقابلہ کر لے، مناظرہ کر لے۔ ایک تو بہت گھمنڈ اور غرور تھا، اس نے کہا سنیے بابا، سنیے بادشاہ، میں جا کر کے جو ہے اس بابا کو جو ہے اس طریقے سے باتیں کروں گا کہ لاجواب کر دوں گا، وہ بابا میرے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں اتنی دولت دی جائے گی، اتنے مال و متا دیے جائیں گے۔ وہ پنڈت تیار ہوا، حضرت جب تیار ہو کے آیا تو آنے کے بعد کیا کیا دیکھیے، جیسے ہی میرے غریب نواز اجمیر شریف کے اندر ہے، ایک درخت کے نیچے علماء کرام بیٹھے ہیں، حضرت علامہ مولانا عبدالسبحان صاحب بیٹھے ہیں، حضور میرے غریب نواز جہاں پر چلہ کشی کرتے تھے وہاں پر ایک درخت تھا، اس درخت کے قریب میں میرے غریب نواز بیٹھے ہیں اور یہ پنڈت گیا ہے۔ جب پنڈت گیا ہے مناظرہ کرنے کے لیے، جب پنڈت آ کر کے بیٹھا، بیٹھنے کے بعد اس کا تیور بہت گرم تھا، وہ جلال میں آیا تھا۔ پنڈت سوچا کہ جیسے ہی ہم بات کریں گے، مناظرہ کریں گے تو غریب نواز جو فقیر ہے، جو ہندوستان آیا ہے، میری باتیں سنے گا اور لاجواب ہو کے چلا جائے گا، بھارت چھوڑ دے گا۔ وہ آنے کے بعد جیسے ہی بیٹھا ہے میرے غریب نواز سے کہا میں تم سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو میرے غریب نواز نے فرمایا مناظرہ کرنے آئے ہو؟ کہا مناظرہ کرنا، لیکن بہت دور سے آئے ہو؟ ہاں بہت دور سے آیا ہو۔ میرے غریب نواز نے فرمایا اے میرے خادم ایک گلاس پانی لاؤ، چونکہ دور سے آیا ہے پہلے سے پانی پلایا جائے۔ جیسے ہی اسے پانی پلایا گیا اس کے بعد اس نے کہا میں مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے غریب نواز نے فرمایا بہت دور سے آئے ہو، رات میں ابھی بیٹھو کھانا کھا لو، کل صبح مناظرہ کرنا۔ جب اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے تو اس کی دل کی دنیا بدلتی ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے میں اس کو ذلیل کرنے آیا ہوں، اس کو ہیج کرنے آیا ہوں، اس کو ذلیل کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ بابا کیسا ہے، پہلے پانی مجھے پوچھ رہا ہے، کھانا مجھے کھلا رہا ہے۔ اس نے کہا بابا میں آپ سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، آپ سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتا، آپ سے کوئی باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کا کردار میں نے دیکھا ہے، آپ کے رفتار میں نے دیکھا ہے، آپ کی زندگی میں نے دیکھی ہے، آپ کا چہرہ میں نے دیکھا ہے، جس نبی کا دین لے کر کے آپ آئے ہیں اسی نبی کا کلمہ پڑھا دو، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ میرے غریب نواز کی شان وہ ہے، خدا کی قسم 90 لاکھ کافروں کو جنہوں نے مسلمان بنایا اس ذات کا نام غریب نواز ہے، ہند کے سلطان ہے عطائے رسول۔ کرتے ہیں تعمیر عید کا کانفرنس تو ہوتا ہے لیکن ہمیں نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ تعمیر قبرستان کانفرنس ہم تو کر لیتے ہیں لیکن آخرت کا سرمایہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے منصر نواز آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے تعمیر مدرسہ کانفرنس بعد میں کیجئے، تعمیر مسجد کانفرنس بعد میں کیجئے، تعمیر عیدگاہ کانفرنس بعد میں کیجئے، تعمیر قبرستان کانفرنس بعد میں کیجئے، سب سے پہلے تعمیر زندگی کانفرنس کر لو۔ جب تیری زندگی کی تعمیر ہوگی تو مسجد بنائے گا بھی اور پیشانی جھکا کر رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بہتر بنائے گا۔
आवाज थोड़ा इको भी दे दे, थोड़ी आवाज बढ़ा दें। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आज गुफ्तगू मेरी अलग तरीके से हो रही है और आपको सुनना है। जब इंसान की तामीर जिंदगी होती है तो क्या होता है, फिर वो आप तो है लेकिन किसी की बहू बेटी पे नजर नहीं उठाती है, उसका पैर तो है। अगर जिंदगी की तामीर होती है तो शराब के अड्डे में नहीं जाता है। जब जिंदगी की तामीर होती है तो यतीमों को नहीं सताता है। जिंदगी की तामीर होती है तो अपने घर को जो है संगे मरमर के मकान में वो बेटा रहता है और माँ को जो है चूल्हे के मकान में नहीं रखता है। जब जिंदगी की तामीर होती है तो बेहूद की बातें नहीं करता है। जब जिंदगी की तामीर होती है हराम नहीं खाता है। जब जिंदगी की तामीर होती है तो हलाल पसंद होता है। जब जिंदगी की तामीर होती है वो इंसान नेकोकार हो जाता है। जब जिंदगी की तामीर होती है खुदा की बंदगी करने वाला होता है। जब जिंदगी की तामीर होती है वो इंसान पक्का और सच्चा हो जाता है। जब जिंदगी की तामीर होती है तो दुनिया भी आबाद होती है, उसकी आखिरत भी आबाद हो जाती है। अगर जिंदगी की तामीर न हो तो सुनिए, हजारों मस्जिदें हैं लेकिन मस्जिदें खाली नजर आती है, मदरसे खाली नजर आ रहे हैं, ईदगाहें खाली नजर आ रही है, कब्रिस्तान आप देख रहे हैं। अगर मुसलमान नहीं जागा, दो चीजों को ख्याल रखिएगा। एक खुदा की इबादत है, दो चीजें और भी याद रखिएगा। पहले दो चीजें याद रखिए, ये दो चीजें जो याद रखेगा वो गुनाह नहीं करेगा। कौन चीजें? एक वो चीज जो इंसान ये सोचे मुझे हर हाल में मौत आने वाली है, चाहे जवानी में भी मौत आ सकती है, बुढ़ापे में भी मौत आ सकती है, इस उम्र में भी मौत आ सकती है, अभी भी मौत आ सकती है, एक आंख में भी मौत आ सकती है, एक घड़ी में भी मौत आ सकती है, एक पल में भी मौत आ सकती है। जिसका ईमान ये होगा, जिसका यकीन ये होगा, जिसका जो है तौर तरीका ये होगा कि मौत मेरे इतने करीब है, वो गुनाहों से बच जाएगा। और जिसका ये तरीका याद रहे कि सुनो, अगर मैंने हक़ुल्लाह को जो है फरामोश किया, हक़ुल इबाद को खा लिया, तो सुनो, अगर मैंने हक़ुल इबाद को गसब किया, हक़ुल इबाद में मैंने किसी का हक मार दिया, तो क़यामत में जब तक ये माफ न करे मेरा खुदा माफ नहीं करेगा। ये दो चीजें याद रखे, किसी का हक नहीं मारेगा, जिसे मौत का ख्याल याद रहे वो दुनिया में गुनाह नहीं करेगा। आज हालात ऐसे हो रहे हैं, इलाके में देख ले, कुरान में रब फरमाता है वाक़िमुस्सला वातुस्सका वरकऊ मार्राकीन, वाक़िमुस्सला और नमाज कायम करो, वातुस्सका और ज़कात अदा करो, वरकऊ मार्राकीन और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ऐ नौजवानों, आज से अहद करके उठना, मेरे भाई अहद करके उठना। आज यहाँ से जाना तो पहले ये तसव्वुर करके जाना कि मेरी जवानी आज है, कल नहीं रह सकती है। कोई यकीन नहीं है कि कल तक मैं जिंदा रहूंगा, तो आज से अहद करके जाइएगा। आप तारीख पढ़िएगा, खुदा की कसम आपको पता चलेगा। कुरान में मेरे रब ने फरमाया वाक़िमुस्सला, नमाज कायम करो, वातुस्सका और ज़कात अदा करो, वरकऊ मार्राकीन और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ऐ मेरे परवरदिगार, तू ये कह रहा है रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अलहदा भी रुकू कर सकता है, अलहदा भी सजदा कर सकता है, क़याम अलहदा भी कर सकता है, लेकिन रुकू करने वालों के साथ रुकू करने की हिकमत क्या है, वजह क्या है? तो सुनिए नौजवानों, आज से तौबा करके कल की फजर की नमाज शुरू कर देना। खुदा की कसम याद रखिए, जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है और रब की बारगाह में पेशानी झुकाने के लिए मस्जिद में दाखिल हो जाता है, तो आज गया है, पहली बार गया है, अभी पहली नमाज पढ़ रहा है, लेकिन याद रखिए उस सफ में जो है कुछ लोग ऐसे भी हैं पूरी जिंदगी नमाज पढ़ रहे हैं, 10 साल की उम्र से 50 साल की उम्र तक वो नमाज अदा कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, और आप उसी के साथ रुकू करने वाले आप भी रुकू कर रहे हैं, उसी सफ में खड़े हो गए हैं। तो मौला तुम्हारे गुनाह नहीं देख रहा है, तुम्हारे खता नहीं देख रहा है, तुम जो रुकू करने वालों के साथ रुकू कर रहे हो, जितना सवाब उसे मिल रहा है उतना सवाब तुझे मिल रहा है। उसका जो रुतबा है वही आज जाकर तेरा भी रुतबा बना।
حضرات محترم، کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے، سچ بتائیے گا آج ہمارے علاقے کے لوگ سوچتے ہیں اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، جوانی ہے بڑھاپے میں نماز پڑھ لوں گا، عمر پڑھے گی نماز پڑھ لوں گا، اور افسوس ہوتا ہے، تعجب اس بات کی ہوتی ہے حضرت علامہ مولانا محمد صاحب، تعجب اس بات کی ہوتی ہے اگر کسی انسان سے کہا جائے کہ داڑھی رکھ لو تو وہ یہ تصور کرتا ہے مولانا ابھی تو میری بیٹی کی شادی باقی ہے، بیٹے کی شادی باقی ہے، سمجھی کے گھر جانا ہے، سمجھی کے گھر جانے تک تو زندہ رہے گا، تیرے پاس گارنٹی کیا ہے؟ میرے تاج الشریعہ کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، خدا کی قسم میرے تاج الشریعہ گجرات کی سرزمین بھروچ کے اندر پہنچے تھے، جب میرے تاج الشریعہ پہنچے تو وہاں پر مریدین معتقدین متوسلین پہنچے، نوجوان لوگ بھی پہنچے، وہاں پر سب مسافہ کر رہے تھے، ایک نوجوان ٹی شرٹ پہن کے گیا تھا، اس نوجوان کی ٹی شرٹ پہ ایک تصویر تھی، ایک فوٹو تھا، جیسے ہی میرے تاج الشریعہ دیکھے تو جو لوگ تاج الشریعہ سے ملے ہیں میں انہی کا غلام ہوں، انہی کے در کا فقیر ہوں، انہی کے در کا منگتا ہوں، خدا کی قسم میرے تاج الشریعہ جب دیکھے کہ نوجوان کے جسم سے اوپر جو ٹی شرٹ ہے اس میں تصویر ہے، میرے تاج الشریعہ نے فرمایا ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا، یہ کیا کر رہا ہے، یہ جو پہن کر جو آیا ہے اتار دے۔ وہ نوجوان پیچھے آیا تو ایک مولانا نے کہا حضرت دیکھیے اگر یہ ٹی شرٹ یہاں اتار دے گا 70 کلومیٹر کی دوری سے یہاں آیا ہے، اندر کچھ نہیں ہے، ایک ٹی شرٹ پہن کر آیا ہے، اتار دے گا اللہ اکبر تو اس کا جسم برہنہ ہو جائے گا، اس لیے وہ ٹی شرٹ پہن کر ہے۔ میرے تاج الشریعہ نے فرمایا تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس کا جسم برہنہ ہے، کیا اس کے پاس گارنٹی ہے 70 کلومیٹر کی دوری تک جانے کی؟ جب جانے کی گارنٹی نہیں ہے تو حرام کام فوراً چھوڑ دے، فوراً سچی توبہ کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعمیری کانفرنس، عظمت تاج الشریعہ زندہ باد ہے، زندہ باد۔ میں آپ سے یہ خطاب کرنا چاہتا ہوں میری بیٹیوں بیٹھ جاؤ، میرے بیٹے بیٹھ جاؤ، میرے بھائی بیٹھ جاؤ، ہاتھ جوڑ کر منصا نواز آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن بے حیائی سے نہیں بچتے، اللہ کی مقدس کتاب کہتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، جب نماز پڑھو گے تو بے حیائی سے بچ جاؤ گے، نماز پڑھو گے بری باتوں سے بچ جاؤ گے، نماز پڑھو گے خدا کی بندگی کرنے لگو گے، سارے گناہوں سے سچی توبہ کرنے لگو گے۔ میں یہ جملہ کہہ رہا تھا، آج کا نوجوان کہتا ہے حضرت ابھی میں داڑھی رکھ کے کروں گا کیا، ابھی مسجد جا کر کروں گا کیا، ابھی میرے پاس وقت ہے، ابھی جھوڑ جھمیلا میرے ساتھ ہے، ابھی گناہ کر لینے تھے۔ اگر تیرے پاس گارنٹی ہے کہ تو جو ہے 70 سال تک جیے گا، تیرے پاس گارنٹی ہے 60 سال تک تو جیے گا، تیرے پاس گارنٹی ہے 50 سال تک جیے گا تو دندناتا ہوا رہ جا، عیاشی کر لے مکاری کر لے، اور اگر گارنٹی نہیں ہے تو سچی توبہ کر لے، اگر گارنٹی نہیں ہے یہیں سے بدلنے کا عزم مسلم کر لے کہ آج سے مجھے بدل جانا ہے۔ آج ہم نمازوں کو ترک کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔ آؤ تاریخ پڑھو، موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اللہ اکبر، آپ ذرا دیکھیں ایک خاتون آتی ہے، علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں، ایک خاتون آتی ہے اور وہ خاتون آ کر عرض کرتی ہے اے موسیٰ کلیم اللہ، اے پیغمبر اسلام، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے بات ہو گیا ہے، مجھ سے خطا کر چکی ہو، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے فرماتے ہیں اے خاتون کیا تم نے گناہ کیا ہے، کیا تم سے پاپ اور جرم ہوا ہے، کیا تم نے جرائم کیے ہیں؟ ایک وقت کی نماز کو ترک کرنے والوں کان کھول کے سن لو، ظہر چھوڑنے والوں کان کھول کے سن لو، عصر مغرب عشاء چھوڑنے والوں کان کھول کے سن لو۔ آج تم کہتے ہو میں کھیت میں تھا نماز چھوٹ گئی، بچے کی پیار نے مجھے نماز چھڑوا دی، یاد رکھنا قبر میں تیرا بیٹا کام نہیں آئے گا، قبر میں کھیتی کام نہیں آئے گی، قبر میں دولت کام نہیں آئے گی، قبر میں مال و متاع کام نہیں آئیں گے، قبر میں اگر کام آئیں گے تو مصطفیٰ کی محبت کام آئے گی، قبر میں کام آئیں گے تو یہ نیکی اور اعمال تیرے کام آئیں گے جو قبر میں کام آئیں گے۔ تھوڑی آواز دے دیجئے بھائی جان، تھوڑی آواز دے دیں یہاں،
मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, खुदा की कसम तारीफ तबाह है। आज देखिए कब्र के अंदर जब जाएगा इंसान, कीड़े मकोड़ों के घर में जाएगा, सांप बिच्छू के घर में जाएगा। सुनिए मेरे आका फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, तहा व यासीन फरमाते हैं, रातुल मुश्ताकीन फरमाते हैं, शम्सुल आरिफीन फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, दोनों जहां के तबीब फरमाते हैं, अगर मरने वाला मुर्दे के सामने जब फरिश्ते आके बात करते हैं तो जिन्नात सुनता है, हैवान सुनता है। अगर उसका बेटा सुन ले, उसकी बेटी सुन ले, उसका भाई सुन ले, तो खुदा की कसम बाप का जनाजा पड़ा पड़ा सर जाएगा, माँ की जनाजा पड़ा पड़ा सर जाएगी। उसकी माँ के जनाजे को बेटा कब्रिस्तान लेके नहीं जाएगा, बेटा बाप की कब्र जो है जिस्म को कब्रिस्तान नहीं लेके जाएगा। अपनी फिक्र करके वो जंगल में निकल जाएगा। वो सोचेगा मुझे भी मरना है, मुझे तैयारी करनी है। ऐ लोगों जरा गौर से कहना, एक बात बताना, अजमेर जाते हो 3 महीना पहले तुम तैयारी करते हो, बगदाद जाते हो 6 महीना पहले तैयारी करते हो, मक्कतुल मुकर्रमा जाते हो 2 साल पहले तैयारी करते हो, मदीनतुल मुनव्वरा जाते हो, तुम तैयारी करते हो। इस दुनिया से सबको जाना है। क्या तुमने कभी तैयारी की है? क्या तुमने उस घर के लिए भी अपने आप को सजाया है? क्या आप नहीं जानते हैं वो कीड़े मकोड़ों का घर है, वो सांप बिच्छू का घर है, वो अंधेरा घर है, वो तारीकी घर है। इमाम अहमद रजा खान वाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने कहा था, ऐ दुनिया वालों, अगर अकल है तो इसको इस्तेमाल करो, और अकल है तो इस्तेमाल ये करो कि इस दुनिया में आखिरत की जो है तैयारियां कर लो, आखिरत का सरमाया जमा कर लो, आखिरत के लिए चिराग की रोशनी अपने सीने में ले लो। कहने वालों ने कहा था, अहमद रजा अगर इश्क का चिराग लेंगे तो क्या होगा? तो इमाम अहमद रजा ने कहा था, लहद में इश्क रूठे शहजाद लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, चिराग लेके चले, तेरे गुलामों के नक्शे कदमे राहे लगा, वो क्या बहक सके तो ये सुराग लेके चले। चिराग बनेगी वही पाने 4 यार की तक तो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। मेरी बाप के दयालु मुसलमानों, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। बहुत जलसे हो गए, बहुत कॉन्फ्रेंस हो गई, हर दिन आप जा रहे हैं। रात में जब नौजवान निकलता है, इसके रास्ते में जाने आने में हादसा भी हो सकता है। रात की तारीकी में बाप का घर छोड़ते हो, बच्चों की माँ को छोड़ते हो, बीवी का बिस्तर छोड़ते हो, अपना घर छोड़ते हो, जो क्या हम चाहेंगे और मुस्तफा की बातें सुनेंगे, कुरान की आयतें पढ़कर उलमा सुनाएंगे, बयान करेंगे, तर्जुमा बयान करेंगे, उस पे अमल करके हम दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाएंगे। इसलिए आप आते हैं, जब आपका मकसद यह है कि हमें सुधरना है, संवरना है, तो जिंदगी बदलने की कोशिश करो। आज मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, बात निकल आई है, आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, क्योंकि वक्त बहुत कम है। इन्होंने जितने लोगों को भी बुलाया है, सारे लोग तशरीफ लाए हैं, खतीब शायर नकीब सबके सब तशरीफ लाए हैं। मैं तो आपके घर का हूँ, मैं तो आपके करीब का हूँ, लेकिन एक वक्त की नमाज बिला उजरे शरई छोड़ने का गुनाह कितना बड़ा है, उसे आप सोचें। आज लोग गुनाह कर लेते हैं और एक दूसरे को इस कदर लड़ा देते हैं, भाई से भाई को लड़ा देते हैं, बाप से बेटे को लड़ा देते हैं, और ऐसा फितना हमारे माशरे के अंदर है। हर दिन आए दिन एक जगह पर ऐसी बातें होती है, आए दिन हर घर में जो है झगड़ा नजर आ रहा है, मियां बीवी का झगड़ा। और आप देखें, एक बात और भी याद आ रही है, 3 लाख रुपए नगद देने के बाद, एक अपाची गाड़ी देने के बाद, फिर इतने पैसे देने के बाद, फिर भी जो है मियां बीवी के अंदर जो है हर रोज झगड़ा क्यों होता है? वजह है क्योंकि उसका शोहर भी जो है मुस्तफा की दीन से दूर हो रहा है, और वो जो बीवी है वो भी फातिमा की जिंदगी से दूर होती है। इसलिए उन्हें पता नहीं है, जिसे पता होता है वो दूर नहीं जाते हैं। मियां बीवी की मोहब्बत ऐसी नहीं होती है, और होनी इस अंदाज में चाहिए। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, बात आगे निकल आएगी, इसलिए मैं जहां से शुरू किया था मैं वहीं पे आ रहा हूं। मेरे मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, ऐ खातून, तुमने कौन सा गुनाह किया है, तुमने कौन सा जुर्म किया है, तुमने कौन सा पाप किया है? तो सुनो मेरी बेटियों, कान खोल के सुनना, मेरे भाई जरा सोचना, एक वक्त की नमाज छोड़ने का कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, ऐ खातून, तुमने कौन सा गुनाह किया है? तो वो खातून कहती है, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, रात की तारीकी थी, मैं जो है किसी के साथ ज़िना कर बैठी, मैंने मुंह काला कर लिया, मेरे पेट में बच्चा पलने लगा, मैंने इतना बड़ा जुर्म
किया है। मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया तुमने इतना बड़ा गुनाह किया है। हाय मूसा कलीमुल्लाह यहीं तक बस नहीं है, 9 महीना 10 दिन में घर के अंदर कैद रही, घर के अंदर बैठी रही। जब 9 महीना 10 दिन पूरा हुआ तो मैं घर के बाहर जंगल में चली गई और उस बच्चे को जन्म दी। और जब उस बच्चे को मैंने जन्म दी तो क्या हुआ मूसा, जरा सुनो। जब मैंने बच्चे को जन्म दी तो बेटा पैदा हुआ। अब मेरे दिल ने कहा ये बच्चा जब बड़ा होगा तो उससे सवाल होगा तेरा बाप कौन है, तो किसका बेटा है, तेरे दादा कौन है, तेरा परदादा कौन है, उससे सवाल होगा। तो ये तो बाप का नाम नहीं बता पाएगा। इस डर ने मैंने अपने बेटे का गला दबा दी, दबोच कर उस बेटे की जान ले ली। मैंने उस बेटे की रूह पर से उन सजी से परवास कर गई, उसकी जान मैंने ले ली। अल्लाह अकबर। मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब सुना तो मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया ऐ खातून औरत मेरी बारगाह से निकल जा, यहाँ से निकल जा। तू इतना बड़ा पापी औरत है, इतना तूने गुनाह किया है कि एक जो है पहले सेना की है, फिर अपने बच्चे को पलने दिया है, बच्चा जन्म हुआ तो उसका गला दबोच के तूने मार दी है। इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है, निकल जा। जैसे ही उसको दरबार से निकाला उतने में मेरे परवरदिगार आलम की रहमत जोश में आती है। मेरे परवरदिगार आलम ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में बुलबुले सिदरा को भेजा, जिब्रील अमी को भेजा। हजरत जिब्रील अमी तशरीफ लाए और मूसा कलीमुल्लाह से कहा ऐ मूसा कलीमुल्लाह आपने इस खातून को क्यों निकाल दिया है। कहा उसने पहले जो है सेना की है, फिर जो है पेट में बच्चे को पलने दिया है। जब 9 महीना 10 दिन हुए बच्चे को जन्म दी है, बच्चा जिंदा था, गला दबोच के मार दी है। इससे बड़ा गुनाह क्या होगा, इसलिए मैंने दरबार से निकाला है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में हजरत जिब्रील अमी पैगाम लेकर आए और कहने लगे मूसा कलीमुल्लाह रब का ये पैगाम है। आप सोचते हैं सबसे बड़ा गुनहगार ये है, सबसे बड़ा खताकार ये औरत है, सबसे बड़ा पापी ये औरत है। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा हाँ इतना बड़ा गुनाह करे, इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है। तो मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में जिब्रील अमी ने कहा रब का पैगाम है, इससे बड़ा गुनाह करने वाला, इससे बड़ा पापी वो है जो बिना उजरे शरई एक वक्त की नमाज को छोड़ता है, इससे बड़ा गुनहगार वो। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। कहाँ हैं आप, कितनी नमाजें छुट्टी आपकी, इतनी उम्र में कैलकुलेशन करो, कैलकुलेटर में जोड़ो कि तुमने अपनी जिंदगी में कितनी नमाजें छोड़ी, कितनी इबादतें छोड़ी, कितने वक्त के नमाजों को तुमने तर्क किया। जलसे में आना बड़ी बात नहीं है, जलसे में तकरीर सुनना बड़ी बात नहीं है, जलसे में आकर के अय्याशी और मक्कारी करना बड़ी बात नहीं है, जलसे में चेहरा दिखाना बड़ी बात नहीं है, जलसा सजा लेना बड़ी बात नहीं है। अगर आपने जलसा सजाया है तो चीची के नौजवानों से मेरा मुतालबा है सच्चे दिल से तौबा करो, तुम भी नमाजी हो जाओ, आने वाले सब नमाजी हो जाए, हम सब पक्के नमाजी हो जाए। तो याद रखिए जब इंसान नमाजी हो जाएगा गुनाहों से सच्ची तौबा कर बैठे। नमाज हर हाल में आपको अदा करनी है। छोटा भी आप गुनाह करते हैं, छोटा सा पाप होता है, आप जानते हैं, आप सोचते हैं ये छोटा गुनाह है क्या हो जाएगा। नहीं यार, कोई नेकी छोटी नहीं होती है और कोई गुनाह छोटा नहीं होता है। जब इंसान गुनाह करके इस दुनिया से जाएगा तो क़यामत के मैदान में सबसे हल्के गुनाह करने वालों के पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएगी। एक बात बता दो, अपने घर में रोटी पकती है, हाथ तवे में रख के दिखाना, कहोगे रख नहीं सकते हैं क्योंकि इस आग जो है मेरे हाथ को जला बैठेगी। तो याद रखिए अगर इस दुनिया की आग में तो अपना हाथ नहीं रख सकता है, पैर नहीं रख सकता है, तो उस जहन्नम की जूती जब तेरे पैरों में पहनाया जाएगा, तेरे दिमाग खोलेंगे, तेरी आंखों से जो है दिमाग खोल कर निकलेंगे, तुम्हारे कानों से बह कर निकलेंगे। ऐ मुसलमानों, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करो, अपने आप को बदलने की
की कोशिश करो, मेरी माओ तुम अपने आप को बदलने की कोशिश करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो एक दिन याद रखिएगा, जलसा तो हो जाता है, कॉन्फ्रेंस तो हो जाती है, बड़े बड़े अकाबिर उलमा तो आ जाते हैं, अगर इनकी बातों को सुनकर आपने अमल नहीं किया तो सिर्फ आना हो जाएगा, लेकिन कामयाब आप नहीं होंगे। कामयाब होने के लिए अमल का होना जरूरी है, अमल करना जरूरी है, किरदार का बेहतर होना जरूरी है। आज होता यह है कि आज हम लोग कहते हैं हमारे बच्चे नमाजी नहीं, मैं कहता हूं खुदा की कसम खाकर, जिसके घर का बाप नमाजी होगा, जिसके घर की मां नमाजी होगी, उस घर का हर बच्चा नमाजी। लेकिन ना आप नमाज पढ़ते हैं, ना आपके बाप ने नमाज पढ़ी है, ना आपकी बीवी नमाज पढ़ती है, ना आपके बच्चे नमाज पढ़ते हैं। जब आप नमाज पढ़ेंगे नहीं तो दिल्ली में लाख रुपए कमाओगे जरूर, घर में बरकत नहीं होगी। पंजाब में 2 लाख कमाओगे जरूर, घरों में बरकत नहीं होगी। अफ्रीका, चीन, जापान जाओगे जरूर, 10 लाख कमाओगे, घरों में बरकत नहीं होगी। अगर घरों में बरकत चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, घरों में बरकत चाहते हो तो मुस्तफा का गुलाम बन जाओ, अगर घरों में बरकत चाहते हो 100 सलात तक मुस्तफा का वफादार हो जाओ। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, मैं पूरी तकरीर नमाज के ताल्लुक से कर रहा था और मैं अभी भी आपके सामने ये जुमला कहता हूं, जो इंसान नमाज पढ़ता है चेहरे पे नूर नजर आता है, जो इंसान नमाज पढ़ता है उसके दिल को सुरूर मिलता है। जब इंसान नमाज पढ़ता है तो उसकी बीवी कितनी भी बदज़बान हो जाए, जिसका शोहर नमाजी है उसकी बीवी शोहर का एहतराम करने पे मजबूर हो जाती है। अगर चाहते हो कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे जो है तादाबे रहे, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे हुक्म की तामील करे, तो नमाजी बन जाओ। और देखो जब इंसान नमाजी होता है तो फिर उसकी जिंदगी संवरती है, आखिरत संवरती है, आखिरत संवरती नजर आती है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, वक्त बहुत कम है और जितना वक्त दिया गया है ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं देखा हूँ, और यहाँ के लोग ही नहीं मेरे इतराफ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। इन लोगों ने मदरसे की तामीर के लिए ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है। छिपी पड़ी बस्ती नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे लोग रहते हैं, दिल के गनी लोग रहते हैं। आप भी गनी है और अल्लाह जिसको गनी बनाता है और फिर उसके साथ उसको दिल अता करता है तो वो जिंदगी इसी जगह पर बेहतर से बेहतर गुजारने की कोशिश करता है पूरे मजमे में। और चाहे यहाँ के कोई कमेटी के लोग हो, उनसे मेरी गुजारिश है कोई ऐसा बंदे खुदा जो ज्यादा नहीं सिर्फ 2100 रुपए तामीर मस्जिद के लिए दे दे। ये सारे लोग बंद कर दें अपने चैनल को, उससे पहले वाली तकरीर कर लिए।